और नए बल्लेबाज गए हैं, उनका नाम भी हमें बताते चले। मीत गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, और दोनों ही टीम इस समय उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं, और कहते भी है ना कि जिसके पास उम्मीद और आस है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। तो यहाँ पर उम्मीद और आस के सहारे यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी को अंजाम देते हुए 2 ओवर समाप्त, 2 के बाद 16, 1 विकेट के नुकसान पर। दो के बाद 16, और यहाँ पर जिस तरह की हुनकार भरी गई थी सिक्सर की, लेकिन मोनिश ने वो बात को सुनी, लेकिन 6 के जगह 4 में तब्दील की, और विजय एक्सपोर्ट चौका आता हुआ। स्कोर 20, 1 विकेट के नुकसान पर। नाइशा गोल्ड बिल्कुल बहुत ही अच्छी स्थिति में है, और ये मुकाबला भी वे जीतने की कोशिश करेंगे, और इस जीत के साथ कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल एक अच्छे औसत पर वो जीतें और अंक तालिका में शीर्ष पर रहें। उसके बाद जब नॉकआउट का जो मुकाबला रहेगा, तो किस टीम को किसके साथ खेलना है, तो ये बाद में निर्भर करेगा। अक्षय तैयार, मोनीश 12 पर खेलते हुए, एक बार पीछे हटके जगह बनाकर इस गेंद को खेलते हुए, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूर्ण करते हुए दूसरे के लिए निकलेंगे, और लाजमी है ऐसे समय पर 2 रन पूर्ण करना ही चाहिए। 2 रनों के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी, 18 रन, 22 रन, माफ कीजिएगा, 22, 1 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद, ये बैक ऑफ द एंड की ये गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा लगा, और विकेट नंबर यहाँ पर गिरता हुआ दूसरा विकेट। बल्लेबाज मोनीश जो थोड़ा सा खतरनाक साबित हो रहे थे, आउट होकर वापस पवेलियन आ रहे हैं। अब देखना है उनका स्थान लेने नए बल्लेबाज Okay, so we are धीरे once धीरे। again back with our man of the match box, and यहाँ पर I would like to call upon Sanjay Suru, owner of Dragon 11 team, who will be giving away the man of the match. I'm sure आप सभी को पता है who's man of the match, right? एक बार जोर से नाम ले लेते हैं man of the match का। धर्मित, yes, धर्मित it is, and संजय भाई। तब तक धर्मित तुम्हारे साथ बात करो। धर्मित, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कांग्रेचुलेशंस, द स्कोर दैट यू हैव मेड 55 रन्स, मतलब हाफ सेंचुरी તમે कंप्लीट કરી with 7 sixes, 1 બાઉન્ડરી along with 1 wicket. શું વિચારીને ગયા હતા અંદર પિચ પર કે આજે શું કરવાનું છે? એક તો ડુ ઓર ડાય મેચ હતી, એટલે ખબર જ હતી કે ભાઈ જે છે એ આ છે, તો એ જ વિચારીને ગયો હતો કે ભાઈ બધું પતાવવાનું જ છે, તો એ જ થયું જે વિચાર્યું, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી બહાર થઈ ગયા ટુર્નામેન્ટના બીકોઝ ઓફ ધ રન રેટ, તો હવે વિલ ટ્રાય નેક્સ્ટ યર. But still the way you played the match, I think આજે અમે લોકો એ જ કન્ફ્યુઝનમાં હતા કે એબી એવેન્જર્સ જીતશે કે તમે જીતશો, મતલબ
हमें लोग को भी कंफ्यूजन में आता बट फाइनली यू गाइस वन द मैच एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू धर्मित बिकॉज તમે हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया एंड द सिक्सेस दैट you've hit 7 sixes in the tournament. I think this is the highest sixes in the tournament which you have scored, so congratulations on that. And it's okay even if you don't make it to the tournament. At the end game છે કોઈ જીતશે તો કોઈ હારશે and you did your best and congratulations. Any message you want to give to all the other teams and the players? મે ધ બેસ્ટ ટીમ વિન. પણ તમે બી બેસ્ટ હતા યાર. અમે હતા બેસ્ટ બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી કરી ન પાયા અમે. It was not a good day for you guys. जीत के भी आप नहीं जीत पाए but it's okay. Next year try करेंगे. ઓકે થેન્ક યુ. Congratulations once again. Can we please have Sanjay Bhai here to give away the Man of the Match award? The owner of Dragon 11 team. Let's root it for Dharmit, everyone! Can we have all the team members along? But the team members bhi aavi jao. All the team members. Ruko, 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 sir. Oh, yeah. No. The team which just won the match against AB Avengers. What a win and what a match it was. Congratulations to the whole team. વિપુલભાઈ એક સ્મોલ ઇન્ટરવ્યુ. વિપુલભાઈ એવી રીતે જઈ શકો તમે યાર. તમે મેચ જીતી બી ગયા છો પણ જીતીને બી નથી જીત્યા. સો હાઉ ઇઝ યોર એક્સપિરિયન્સ? તમને આખું ઇવેન્ટ કેવું લાગ્યું એન્ડ એની એક્સપિરિયન્સ યુ વોન્ટ ટુ શેર? સારો એક્સપિરિયન્સ થયો. આવે જ ને અવાજ? એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો થયો છે. અમે લોકો એકચ્યુઅલી જીતવાના જ હતા પણ જે લાસ્ટ ઓવરમાં અમારે થોડુંક ચેન્જ આવ્યું એના હિસાબે અમે ન આવી શક્યા, જીતી શક્યા. અને અમારી જે વિરુદ્ધ ટીમ હતી જે અમે આવત તો એ 12 જાત, એ લોકો બહુ ખુશ થયા છે. એવી એવેન્જર્સ. ઓકે, તો બધા ભાઈઓ જ છીએ. અમે 12 ગયા તો એ અંદર આવ્યા અને કોઈ બી એક જ જીતવાની છે, બધી તો જીતવાની નથી. તો બાકીની ટીમને વેલ પ્લે. થેન્ક યુ સો મચ. તમારી ટીમ બી બહુ સારી રમી છે અને ધર્મિતે જે આજે જે મેચ રમી છે 7 સિક્સીસ એની બારેમાં તમે કઈ બોલવા માંગશો? ધર્મિત, I want a good play, man. મારી એક બોલિંગમાં એક સ્ટાઇલ છે અને મારી એક ઈચ્છા હતી કે હું બોલ્ડ કરીને હું સ્ટાઇલ કરું ગ્રાઉન્ડમાં. Would you like to do that here? યા પણ આ વખતે નો બન્યું એવું. તો નેક્સ્ટ યર, આ સીઝન ફર્સ્ટ છે, નેક્સ્ટ યર પાછી અમે ટ્રાય કરશું. આ વખતે અમારી ટીમમાં 2 જ બેટ્સમેન હતા, નેક્સ્ટ વખત અમે 4 લઈને આવશું. વાહ. અને કેમ કે 4 એટલે લાવશું કેમ કે 7 બોલર પણ જોશે ને. અરે અરે અરે. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ અમે 4 બેટ્સમેન લાવશું Okay. અને ધર્મિત પણ જરૂર લાવશું. ધર્મિત, ઓકે, અમારી ટીમે બહુ સારું કર્યું એન્ડ ગુડ ટીમ. big congratulations. બિગ કોંગ્રેચ્યુલેશન. થેન્ક યુ. ને તમારો ઓલો સ્ટેપ બોલિંગ નો સ્ટેપ જોવો છે બધાને પ્લીઝ એકવાર. પ્લીઝ પ્લીઝ. યસ, તમે કરીને બતાવો. Woo! हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं and he has the sporting spirit. That was the team owner Vipul of and finally we have got man of the match who's Dharmit Soni. वो जीत के भी नहीं जीत पाए. They couldn't make it to the tournament because of the run rate. But कोई बात नहीं. This is a match. इसमें कोई जीतता है तो कोई हारता है and आज AB Avengers हार के भी जीत गई है. So let's see who wins the final match. Over to you, Pandit. धन्यवाद माधुरी जी। इस समय वहाँ पर एक छोटा सा अंतराल होता हुआ, ड्रिंक ब्रेक होता हुआ और कुछ ना कुछ दिशा निर्देश भी इस अंतराल में बल्लेबाज के लिए जाता हुआ। 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर हो चले हैं समाप्त। और जैसे माधुरी जी कह रही थी कि हारने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा योद्धा वो नहीं जो हमेशा जीते, योद्धा तो वो है जो हर परिस्थिति में लड़े।
तो बिल्कुल एक योद्धा की भांति आपको लड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। जीत और हार के बीच में आपकी मन स्थिति क्या है? बिल्कुल समय पर भी ध्यान दें। 30-30 मिनटों में आपको अपनी पारी समाप्त करनी है। इस समय सिर्फ 10 मिनटें और बची हैं और 10 मिनटों में आपको अपने 18 गेंदे पूर्ण करने हैं। विरल आए हैं गेंदबाज, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं, ये इनकी एक शैली है, राउंड द विकेट ही गेंदबाजी करते हैं। अटैक इनके पास बहुत अच्छा है और जब ये राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं रफ्तार के साथ ये शुरू करने की कोशिश करते हैं और जो रफ्तार भरी गेंद रहती है तो अमूमन ये स्लॉट में गेंद करने की जो कोशिश रहती है वहां पर कई बार हमने देखा है कि विकेट भी उन्हें मिली है। क्रीज का भी अच्छा उपयोग, देखिए मैं इसी गेंद की बात कर रहा था, क्या बल्ले पर लगी थी क्या गेंद, हालांकि बाई का इशारा, एक अच्छी गेंद थी और कहीं ना कहीं गेंदबाज भी नाखुश हो जाते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि बैकअप जो होता है वो खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर विकेट कीपर के पास एक मौका था, इस गेंद को पकड़ सकते थे, ये गेंद डॉट में कन्वर्ट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर 4 रन हासिल कर लिए बाई के जरिए, चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 41। ये सब सारी एक बारीकियां होती हैं जिसे प्रत्येक मैच में आपको उसे समझना होता है और आने वाले मैचेस में उसको दुरुस्त करना होता है, लेकिन आपके पास उतना समय भी नहीं है। एक बार ऐसा लग रहा था कि स्क्वायर लेग के खिलाड़ी इस गेंद को पकड़ लेंगे और नतीजा बाउंड लाइन के बाहर, विजय एक्सपोर्ट चौका। पैंतालीस 2 विकेटों के नुकसान पर 4.3 ओवर, ये 5वां ओवर प्रगति पर विरल गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबे कद के ये खिलाड़ी राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और ऊंचा खेल बैठे हैं, वहां देखना है क्या विरल फॉलो थ्रू में एक अच्छा कैच। और जब भी आप टर्न होते हैं, जब आप उल्टे जाकर कैच को लपकने का प्रयास करते हैं, वो ये आसान नहीं होता और विरल ने बहुत ही अच्छा कैच वहां लपका। एक सीख, एक मैसेज विरल अपने साथी खिलाड़ियों को देते हुए कि मौका बार बार नहीं आता और जब भी मौका आता है तो उसे बुनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी में कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर वंस, तो जब भी आपको मौका मिले उस मौके को भुनाने की कोशिश करें, ना कि गवाएं, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलती, परिस्थितियां बार बार आपके पाले में नहीं आएंगी, कई बार अवस्था जो होती है वो गंभीर भी हो जाती है और ऐसे समय में तब आपको योद्धा की तरह पेश आना होता है। 1 रन और इस बीच, इस 1 रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 46 रनों पर। 5वां ओवर चल रहा है और विरल है गेंदबाज, 3 खिलाड़ी केवल दायरे के बाहर, बिल्कुल खराब गेंद और नतीजा 6 रन। 6 रनों के साथ ओवर हुआ यहाँ पर समाप्त और टीम की रन संख्या जा पहुंची है 52, 3 विकेटों के नुकसान पर। और केवल 3 मिनटें और बची हैं, 3 मिनटों में आप कोशिश करें कि अपने जो ओवर्स बचे हैं उसे पूर्ण करें। इसके बाद आज के दिन का जो महिलाओं का मुकाबला खेला जाएगा, गोल्डन ग्लैडिएटर्स विरुद्ध ओम 11 के बीच में,
दोनों ही टीमों के कप्तानों से मैं निवेदन करूंगा कि वो तैयार रहें। ये पहली पारी जैसे ही समाप्त होती है, दोनों ही कप्तान टॉस के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ शीघ्र ही प्रस्थान करिएगा। नए ओवर की शुरुआत, एक स्टाइलिश, एक मंझे हुए, एक बेहतरीन गेंदबाज दीप। दीप की ये गेंद एक बार फिर से सफल हुए, लेकिन इस बार उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं। नतीजा एक आसान सा कैच और बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रवाना होते हुए। स्कोर 52, 4 विकेटों के नुकसान पर। छठे ओवर की शुरुआत हो चली है। दीप एक नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरी गेंद पर सफलता हासिल करते हुए। अंत समय पर बल्ला नीचे लाया, केवल दिशा दे दी जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड की जाती। 1 रन और 1 रन के साथ छोर को यहां पर परिवर्तित किया। 53, 4 विकेटों के नुकसान पर। 17 पर जिगर प्रीतम अभी अभी आए हैं, 1 पर खाता खोलते हुए। अब पूरी यहां पर जिम्मेदारी रहेगी जिगर के कंधों पर। जिम्मेदारी भरी पारी खेल रहे हैं। अब देखना है समाप्त किस तरह से करते हैं। निचला हिस्सा लगा, शॉर्ट फाइन लेग पे मिस फील्डिंग होती हुई गेंद अब धीरे धीरे सीमा रेखा की तरफ पहुंचती हुई है। 4 रन, विजय एक्सपोर्ट चौका। 57 रन। ऐसे गेंदों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। हालांकि कोशिश की गई थी, लेकिन विफल रहे और सफल हुई गेंद जो बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। अब क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं दीप? एक बार फिर से ये ओवर पिच डिलीवरी लॉन्ग ऑन रीजन में विरल है, वहां पर केवल एक ही रन मिलेगा। 5.5 ओवर, 58 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये फुल लेंथ की डिलीवरी बिल्कुल हल्के हाथ से खेलते हुए मिड ऑन पे जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, ओवर थ्रो, लेकिन कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। 2 रनों के साथ ओवर नंबर 6 हुआ यहां पर समाप्त। 6 के बाद 60, 4 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल जैसे देखेंगे कि नाइशा गोल्ड इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और हितेश भाई हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। लगातार वो कुछ बातें हमसे शेयर भी कर रहे हैं, उत्साह में हैं। क्लीन बोल्ड, एक बिल्कुल सटीक स्पॉट पर गेंद को पिच कराते हुए और विकेट वहां पर गिरा। क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन आ रहे हैं। ये बल्लेबाज खतरनाक साबित हो सकता था। अब अंतिम 5 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं, ये देखने लायक रहेगा। फिलहाल नाइशा को एक और झटका। मनीष जा रहे हैं नए बल्लेबाज।
अच्छी पारी खेलते हुए जिगर 28 रन की एक उपयोगी पारी उन्होंने अपने टीम के लिए खेली। 60 और जैसे मैं कह रहा था कि हितेश भाई हमारे बाजू में मौजूद हैं, लगातार वो चर्चा कर रहे थे कि अंतिम ओवर में अगर 15 रन तक आ जाते हैं तो हम एक बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल पर पहुंच सकते हैं, और ये टोटल जब आ जाएगा तो शायद ये टोटल बैटल में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी कह पाना, कुछ भी आकलन करना, कुछ भी नतीजे पे पहुंचना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है। 61 रन। और जब तक जिगर खेल रहे थे तब लग रहा था कि बिल्कुल एक बड़े स्कोर तक पहुंचेंगे। हालांकि स्कोर जो अब तक स्कोर बोर्ड पर दर्शा रहा है ये बिल्कुल उनके पाले में है, क्योंकि उनके पास अटैक भी अच्छा है, गेंदबाज भी अच्छे हैं, गेंदबाजी भी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर अब देखें तो ओम अलंकार के गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। यश एक अच्छे बल्लेबाज उतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल आपको समझना होगा कि बल्लेबाज की मंशा क्या है और उसके अनुरूप ही गेंदबाजी करनी होगी, वही कर रहे हैं। ऊंचा खेल बैठे हैं, खिलाड़ी ने दौड़ जरूर लगाई, आसान सा कैच। विकेट नंबर 6 गिरता हुआ, स्कोर 61। एक्शन रिप्ले आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, फ्लैटेड गेंद थी, लेकिन जल्दी खेल बैठे थे, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की मिड विकेट पर, वहां पर खिलाड़ी ने एक आसान सा कैच लेते हुए। और जब तक जिगर बल्लेबाजी कर रहे थे स्कोर बोर्ड गतिमान था, गतिशील था, वहां पर लगातार रन बन रहे थे। तब चाहे वो बड़े प्रहार की बात करें या सिंगल्स और डबल्स की बात करें, इस तरह से आपको रन बनाते रहने चाहिए, क्योंकि इसके बाद औसत देखा जाएगा। मैंने पहले भी कहा था सुबह के सत्र में कि औसत बहुत मायने रखता है। बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन पर खेलते हुए डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए 2 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 63 रनों पर। 63, 6 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद, यश, ये बिल्कुल ओवर पिच, एकदम पाले में ये गेंद कर बैठे। मुझे लग रहा है यहाँ पर परीक्षण करने की कोशिश की, तेज गति की गेंद करने की कोशिश, बिल्कुल पाले में आई और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर गए, एक बेहतरीन पंच किया और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। विजय एक्सपोर्ट सिक्सर, और इस सिक्सर के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 69 रनों पर। 69, 70 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल अगर बात करें तो 10 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। तो क्या ओम अलंकार, क्या विरल जब शुरुआती बल्लेबाजी करने आएंगे उनके साथ यश रहेंगे, तो देखना है क्या यश यश प्राप्त करा पाते हैं कि नहीं अपनी टीम को। ये तमाम प्रश्न है, ये तमाम प्रश्नों के जवाब हमें कुछ ही क्षणों में मिलेंगे जब ओम अलंकार के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि 5 मिनटों के बाद इसके बाद वुमेन्स का जो मुकाबला है गोल्डन ग्लैडिएटर्स विरुद्ध ओम 11 के कप्तानों से मैं निवेदन करूंगा कि ठीक 5 मिनट के बाद आप प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस के लिए आ जाएं। ओम अलंकार विरुद्ध नाइशा गोल्ड के बीच में ये आज के दिन का अंतिम लीग मुकाबला चल रहा है, और इसके बाद पूरा नतीजा साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम नॉकआउट में प्रवेश कर रही है, कौन सी टीम किसके साथ भिड़ेगी। और ये सारी तमाम जो यहाँ पर भिड़ंत हो रही है, ये तमाम जो कश्मकश एक यहाँ पर युद्ध चल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में, ये तमाम इस ट्रॉफी के लिए चल रहा है, जो आप देख सकते हैं कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बाईं ओर जो रखी गई है। ये सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण पहला है, आज दूसरा और अंतिम दिन है।
गेंदबाजी की जिम्मेदारी हितेश, जो इस समय कुछ देर पहले हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में थे, बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं। दीप और हृदय की ये प्रारंभिक जोड़ी, देखना है क्या बल्ले पर कुछ हिस्सा लगा है। हालांकि फाइन लेग पॉइंट लाइन के बाहर, 4 रन। दोनों ही टीमों की जो शुरुआत रही वो चौके से रही, तब चाहे नाइशा गोल्ड की बात करें, बैकवर्ड पॉइंट पर चौके के सहारे उन्होंने अपना खाता खोला। इस समय यहाँ पर फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर दीप ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंचा दी 4 रनों पर। अब जीत के लिए अग्रसर हो चले हैं। एक प्रश्न जो बार बार मन में आ रहा है कि बल्लेबाज जिस तरह से शफल हो रहे हैं, ऑफ स्टंप के काफी बार जा रहे हैं, तो क्या ये तमाम चीजें हैं कि अंपायर्स किस लहजे से देखते हैं कि अगर गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज ज्यादा सफल हो जाते हैं, गेंद मिडल और लेग स्टंप से अगर बाहर की तरफ जाती है, तो क्या उसे वाइड घोषित करेंगे? ये प्रश्न है। ये एक इसके ऊपर एक चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि टेनिस में हम देख रहे हैं कि बार बार जो बल्लेबाज होते हैं वो काफी ज्यादा सफल हो जाते हैं। इस बार सीधे बल्ले से खेलते हुए बॉलर की दिशा में खेली गई ये स्ट्रोक कुछ हद तक गेंद को रुकाने में कामयाब रहे, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओम अलंकार इस समय, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, एक तरफ हृदय जो इस समय स्ट्राइक पर हैं और दूसरे छोर पर हैं दीप। वहीं हृदय की अगर बात करें तो आज के दिन का जो पहला मुकाबला था, हृदय ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर बल्लेबाजी की थी। बाएं हाथ से अक्रॉस राउंड द विकेट, बाहरी किनारा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। छह रन। फुल टॉस गेंद, दीप आगे निकल चुके थे, लेंथ थोड़ी छोटी करनी चाहते थे, फुल टॉस के सहारे गेंद को खेलने की कोशिश की। थर्ड मैन पे जब तक फील्ड करते 1 रन, इस 1 रन के सहारे स्कोर धीरे धीरे 7 रनों पर जा पहुंची है और आवश्यकता थी 10 रन प्रति ओवर के जरिए आप रन का पीछा करें। अगर शुरुआत में आप उस अंक तक पहुंच जाते हैं, उस औसत पर बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित ही रूप से आने वाले ओवर आपके लिए बहुत ही अच्छे, एक सकारात्मक साबित होंगे। यहाँ फिलहाल पहला ओवर हुआ समाप्त, पहले के बाद स्कोर है 7, 8 रन, 8 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों ही कप्तान गोल्डन ग्लैडिएटर्स ओम 11, गोल्डन ग्लैडिएटर्स ओम 11 टॉस के लिए आप बिल्कुल उस प्रेजेंटेशन क्षेत्र पर पहुंच जाए। जो अब इसके बाद का मुकाबला महिलाओं का खेला जाएगा। मैं दोनों ही कप्तानों से निवेदन करूंगा, गोल्डन ग्लैडिएटर्स ओम 11 इनके कप्तान टॉस के लिए जल्द से जल्द पहुंच जाएं। अमित हैं इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। हृदय के लिए गेंद और बिल्कुल स्टैंड ऑन डिलीवर के जरिए स्ट्रोक को खेलते हुए वहां पर अच्छी फील्डिंग होती हुई। जिगर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 2 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, ये इनका पैटर्न है, ये एक सिग्नेचर स्ट्रोक है हृदय का। बिल्कुल अगर पैरों पर उन्हें गेंद की गई तो बहुत अच्छे तरीके से फ्लिक करते हैं, कलाइयों का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। एक बार फिर से ये लो फुल टॉस थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, थ्रो डायरेक्ट लगता हुआ और यहाँ पर क्या लाजवाब थ्रो, बिल्कुल एकदम कैजुअल अप्रोच देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज एक कैजुअल तरीके से क्रीज में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ और चारों खाने चित, और इस तरीके से रनआउट के जरिए ये पहला विकेट गिरा।
बेहतरीन थ्रो। जो कैमरामैन है उनसे निवेदन है कि इस समय टॉस होने जा रहा है। कैमरामैन, फोटोग्राफर, आप शीघ्र ही वहां प्रस्थान करें। लाजवाब फील्डिंग। स्ट्रोक अच्छा था, फील्डिंग उतनी अच्छी हुई है, लेकिन थ्रो देखने लायक। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। हाँ। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दीप स्ट्राइक एंड पर और उनका साथ निभा रहे हैं यश नॉन स्ट्राइक एंड पर। ये छोटी गेंद, छोटी गेंद उठाकर खेलते हुए, लेकिन क्या बेहतरीन कैच। वाह, ये होता है एफर्ट, 100% योगदान। उसके पहले रन आउट और अब यहाँ पर एक जबरदस्त कैच। संजय वहां पर खिलाड़ी मौजूद, क्या बेहतरीन कैच लपकते हुए। 10 के योग पर दूसरा विकेट गिरता हुआ, दीप आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रवाना। और बिल्कुल टॉस के लिए हम तैयार हैं। दोनों टीमों ने लाइनअप कर ली है। So yes, we are live from the toss box and as you all can see हमारी बड़ी खूबसूरत महिलाओं જે અહીંયા છે એક બાર જોરદાર તાળીਆਂ થઈ જાય. So on my right I have Golden Gladiators and on my left I have Om. So to all the viewers તમે અમને બતાવો કે તમારી ફેવરેટ મહિલાઓની ટીમ કોની છે. Right now અમે લોકો એક ટોસ કરવાના છે and for that toss I would like to call upon stage Jitendra bhai. Take the photo. Okay, so I'll take the interview of the हमारा जे बी कैप्टन છે અહીંયા. Okay, તમે captain છો of Golden Gladiator, right? તમારી આ first match છે આજે. તમારે શું plan છે? તમે શું strategy રાખી છે આજે? Nothing sort of strategies નથી બનાવી અમે લોકો. We are just here to enjoy the game because strategies માં જઈને અમને politics માં નથી ઘૂસવું. We are just enjoying the game. Really? So that means અગર આ opposite team જીતી બી જાય તો બી તમને કાંઈ problem નથી. ના એમ અમે tough competition દેવા ready છે. Tough competition. Ready for that. All right, and અહીંયા Golden 11 ના captain ma'am Om 11, sorry. So this is the favorite now. Favoritism છે. Big Boss નથી આ. You are also my favorite. So Om 11, તમે કાલે એક match રમ્યા હતા, right? અને તમે match જીત્યા હતા? We lost for સમજો ને કે 0.5% માટે we lost, but it's okay, we are ready for today. All right, આજે શું વિચાર્યું છે? શું સ્કોર કરશો? અગર ટોસ જીત્યા તો પહેલા તમે બોલિંગ લેશો કે બેટિંગ? We'll see, let's win the toss first, then we'll decide. All right, તમે બહુ કોન્ફિડન્ટ લાગી રહ્યા છો ને મેમ તમે બી કાફી કોન્ફિડન્ટ છો. So let's see, let's spin the coin and see who wins the toss. Can we please have Sheila Bain here for the toss? Hello ma'am, welcome. Om 11 ના તરફથી છો તમે? ઓકે તો પછી હું આમના તરફથી છું. All right ma'am, તમે coin flip કરશો please. Who will call first? તમે call કરશો કે? Okay, so she'll call first. You call for? Heads? Okay, heads it is. Congratulations, you win the toss. So Golden Gladiator wins the toss and they choose to? Bowl first. They choose to bowl first. All right. શું લાગે છે તમને? તમે કેટલા સ્કોર કરશો આજે બેટિંગમાં? 80. 80 કરવા દેશો તમે? We'll chase it. All right, let's see. That's a nice sportsmanship spirit here in the females. આજે પહેલી વાર આપણે આ જોઈ રહ્યા છીએ in Sony Youth Premier League માં જ્યાં females રમવાના છે. So viewers, please stay connected because આ females એમના પોતાના family, એમના બચ્ચાઓને, ઘરના બધાને મૂકીને અહીંયા આવ્યા છે. And it is a very proud thing અમારા સોની સમાજ માટે. So stay tuned with us and yes, તમને કાંઈ કેવું? One thing we have decided, Golden Gladiators and Om 11, કે જે પણ 4 મારશે કે 6 મારશે, અમારું જે સ્લોગન છે એ બેવ માટે રહેશે. एक बार वो स्लोगन हो जाए. चलो सब साथ में, come on girls. छक्का लगा, फूक, हाँ, छक्का लगा, फूक, हाँ.
મતલબ આ તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળશે. આ બધા એમ કહે કે એક ફિમેલ ને દુશ્મન હોય છે, પણ અહીંયા એવું નથી. અહીંયા ફિમેલ ફ્રેન્ડ્સ છે. ખાલી કોમ્પિટિશન આપવાના છે and એ લોકોને કોઈ દુઃખ બી નહીં થાય, બસ એન્જોયમેન્ટ માટે છે. સો લેટ્સ સી હુ વિન્સ ધ મેચ. ઓમ 11 you will be batting first and તમે bowling કરશો. So over to you, Pandaji. Congratulations to both the team and may the best team win. काफी जोश में है और स्लोगन्स तो काफी बढ़िया है, लेकिन ये गेंद थी उतनी अच्छी लेंथ नहीं थी, मौका था बल्लेबाज के पास फाइन लेग पर इस गेंद को खेलते हुए एक ही रन मिलेगा। मनोज जी, जो स्लोगन आपने सुना जब टॉस वहां पर हो रहा था, गोल्डन ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, हो जाए एक बार और। चौका लगा, चौका लगा, चौका लगा, चौका लगा, आप लोग दोहराएं, चौका लगा, चौका लगा। क्या बात है, आज हम यहाँ कुछ ले जाएं या न ले जाएं, लेकिन ये चौका लगा, चौका लगा, ये ले जाएंगे। बहुत ही अच्छा, कमाल का स्लोगन है। मनोज जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा स्लोगन है और गूगल भी थोड़ा सा घबरा रहा है इसका मीनिंग बताने के लिए। बहुत अच्छा स्लोगन है और बहुत मजा कल भी आया था, आज भी आएगा। और फिलहाल स्कोर कितना हुआ आशीष जी, एक बार अपडेट कर दे, उसके बाद 21 पे 2, 21, 21 पे 2। लक्ष्य कितने का है, क्या है? हाँ, नाइसा गोल्ड को 70 का लक्ष्य है, जिसमें से कि अभी तक 21 बन चुके हैं नाइसा गोल्ड के, और 24 गेंद पे अभी भी 49 रनों की आवश्यकता है। तो मुकाबला तो बहुत दिलचस्प है आशीष जी, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद के जो मैचेस होंगे और नॉकआउट मुकाबले शुरू हो जाएंगे, जो हारेगा उसको इंतजार करना पड़ेगा 2024 का। बिल्कुल मनोज जी, 24 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता है। यश वहां पर हैं और यश को आप देखिए बिल्कुल अपराइट स्टांस में वो बल्लेबाजी करते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि गेंदबाजी भी उन्होंने अच्छी की थी। एक अंतिम गेंद तेज गति की थी, जहां पर उन्हें छक्का जड़ा था बल्लेबाज ने। अगर वो उस एक गेंद को छोड़ दें तो उनकी बहुत ही बेहतरीन गेंद रही। अब अगर इस जो बॉलर आए हैं उनका नाम बता दें, बॉलर्स नेम। मिहिर 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 आए गेंदबाजी करने के लिए। यश देखना है किस प्रकार और किस अंदाज में इस गेंदबाज को खेलते हैं। आगे निकले, यहां पर थ्रो हुआ, भाग्यशाली रहे हैं, बिल्कुल सही समय पर अंदर आ गए थे। एक रन इस दरमियान ओवर थ्रो के माध्यम से। इस एक रन के साथ स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ, थोड़ी सी नीचे रह गई थी, बल्लेबाज आगे जरूर निकले थे, उनके मन से और इरादा उनका साफ है। जहां पर गेंदबाज संभवतः भांप लिए थे और थोड़ा सा नीचे रखते हुए गेंद, भाग्यशाली रहे, सही समय पर वापसी करते हुए एक रन ओवर थ्रो के जरिए जरूर मिलता हुआ। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी मनोज जी 48 की आवश्यकता है, गेंदें बची हैं 22। 22 गेंद पे 48 रन आशीष जी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक दो बड़े शॉट की दरकार होगी। इस बार हवा में उठा करके खेल बैठे बिल्कुल फील्डर के हाथ में गेंद एक बार उछली थी, एक बार स्लिप ऐसे की थी जैसे बाथरूम में आप नहा रहे हो, हाथ से साबुन स्लिप करता हो, लेकिन दूसरी बार पकड़ लिया गया। अच्छा कैच, कैच लेने वाले फील्डर का नाम नहीं है पता हमें, क्योंकि कोई 12th मैन उस टीम के यहाँ पे नहीं है। और जब नहीं है तो बाद में आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमने इतना कैच पकड़ा या हमारा विकेट इतना था, हमने ये रन बनाया, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। विरल आते ही ये शॉट इन्होंने जमाया, क्या खूबसूरत शॉट, वाह। नाम विरल और शॉट वायरल। नो +4। नो +4 और स्कोर पहुंच चुका है इस समय 27 पे।
विरल कल भी हमने देखा था बहुत अच्छी बल्लेबाजी किए थे, आज भी बहुत अच्छी बैटिंग पहली गेंद पे किए। तो एक अच्छी बैट्समैन है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, आप स्टंप पे टिप्पा खाई, थोड़ी सी बाहर निकल रही थी, बल्लेबाज खेलना चाहते हैं, शायद से बारी किनारा लगा, विकेट कीपर की पहुंच से थोड़ी दूर थी। रन जरूर यहाँ पर एक मिल जाएंगे। विरल नॉन स्ट्राइकर एंड में पहुंच गए हैं और स्कोर हो चुका है इस समय 28। इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही सशक्त बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जहां तक बात करें, विरल जो कप्तान है, नॉन स्ट्राइक एंड पर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बल्लेबाजी करनी होगी। बड़ा प्रहार बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और गेंद उनके पाले में आती, बहुत अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। मिहिर की गेंदबाजी को अगर हम देखें, बिल्कुल मन मुताबिक गेंदबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाज की अगर बात करें तो उनके अपने हिसाब से वो स्ट्रोक को नहीं खेल पा रहे हैं। मिहिर की ये गेंद इस बार केवल बल्ले को अंत समय पर नीचे लाते हुए पॉइंट की दिशा में खेल दिया। एक रन और इस दरमियान, इस एक रन के सहारे ओवर हो चला है यहाँ पर चौथा समाप्त। 4 के बाद 29, 3 विकेटों के नुकसान पर अब 18 गेंदों में 41 रनों की और आवश्यकता है। मनोज जी, 18 गेंदों में 41 रन। बिल्कुल आशीष जी, 18 गेंद में 41 रन की आवश्यकता है, तो 18 गेंद में 41 रन भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक ओवर में आपको जो है करीब 13.5 के औसत से करीब रन बनाने हैं। तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। वैसे विरल हैं तो उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। बिल्कुल मनोज जी, और ये अब जो ओवर है ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि ये 5वां ओवर की शुरुआत होने जा रही है, जो पावर प्ले का ओवर रहेगा। 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल इस ओवर में अधिक से अधिक रन बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और अगर इस ओवर में रन बना देते हैं तो आने वाले जो 2 ओवर होंगे, 2 ओवर के जो गेंदबाज होंगे उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा आशीष जी। इस समय गेंदबाजी करने के लिए अ, जिगर है शायद गेंदबाज। एक बार बॉलर का नाम कंफर्म कर दें। संजय संजय है गेंदबाज, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लिया था ऑन साइड में। इनकी गेंदबाजी भी बड़ी अच्छी है, कल इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी और आज उसी तरीके की गेंदबाजी को वो दोहराते हैं, तो निश्चित ही रूप से ये ओवर में वो 4 चांद लगा पाएंगे। ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी जिसे मोड़ दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, नो बॉल का इशारा आता हुआ अबव द वेस्ट हाइट। यहाँ पर 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 2 रनों के सहारे स्कोर अब 31 रन पर जा पहुंचा है। संजय, अब देखना है पिचिंग कहाँ करते हैं। इनकी लेंथ बिल्कुल अच्छी रहती है, और अब पिचिंग कहाँ करते हैं ये देखने लायक रहेगा। आगे निकले, लेकिन ये फ्री हिट था। मैंने कहा इनकी लेंथ बड़ी अच्छी है, गेंदबाजी बड़ी अच्छी करते हैं। इकतीस, 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ संजय तैयार और बेहतरीन स्ट्रोक, क्या लाजवाब स्ट्रोक, लॉन्गर बॉन्ड लाइन के बाहर, विजय एक्सपोर्ट सिक्सर। इसके पहले सिक्सर और अब चौका आता हुआ विरल है एक्शन में।
अब यहाँ पर ये आक्रमण पर आते हुए और इसी तर्ज पर बल्लेबाजी करनी होगी और यही एकमात्र ऐसा ओवर है क्योंकि केवल 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर हैं। स्कोर जा पहुंचा 41 रन, 3 गेंदें और आनी बाकी है और अब 15 गेंदों में 29 रन बनाने हैं। 15 balls 29 runs to win। इस समय विचार करते हुए कि संजय अब कहाँ गेंदबाजी करें। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे, यॉर्कलैंड की गेंद करेंगे, वाइड यॉर्कर करेंगे, कौन सी गेंद होगी। इस बार पहले से ही स्लाइड कर दिया था और इस गेंद को मोड़ते हुए एक ही रन। 42 3 विकेटों के नुकसान पर। पंद्रह पर विरल खेलते हुए और 5 पर हैं यश। इस बार मोड़ना चाहते थे चूंकि ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं। संजय की अगर बात करें, बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये अंतिम लीग मुकाबला चलता हुआ दूसरा दिन सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण पहला। पैरों पर की गई ये गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोड़ा, एक ही रन मिलेगा। ओवर हो चला है पांचवा समाप्त। 5 के बाद 43 3 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदों में अब 27 रनों की आवश्यकता है। अभी भी 14 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। 12 गेंदें 27 रन, 12 balls 27 runs to win। Check. ये चाहे थे कि मैं चिल्लाऊं। So I'm here to have fun with all of our lovely audience here જે સવારથી આટલી ધૂપમાં બેસ્યા છે અને અમારા બધા પ્લેયર્સને ચીયર્સ કરી રહ્યા છે. So first of all audience તમે પોતપોતા માટે જ એક બહુ જોરથી તાળી વગાડી દો યાર. Come on everyone. Wow, that's nice. હું બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછીશ, મારા ક્વેશ્ચન્સમાં જ તમારો આન્સર હશે. My first question is ફિમેલ ટીમ્સમાંથી તમારે કોઈ એક ફેવરેટ પ્લેયરનું નામ બોલો.
स्कोर इस हेलो समय है 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 54। तब तक मैच की तरफ रुख करते हैं। 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 5.5 ओवर की समाप्ति के बाद विरल 22 पे खेल रहे हैं, यश 9 पर खेल रहे हैं। ये एक लंबा ओवर यहाँ पर साबित होता हुआ जिगर सोनी का। फुल टॉस गेंद घुटनों के बल आए और इस गेंद को खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के करीब बहुत ही अच्छी फील्डिंग होती हुई बाएं हाथ से इस गेंद को रुकाया और निश्चित ही रूप से अपने टीम के लिए बहुमूल्य 2 रन को रुकाते हुए लाजवाब। नाइसा गोल्ड की अगर बात करें तो आज फील्डिंग में उन्होंने बहुत ही प्रभावित किया है। पहले रन आउट, उसके बाद वो कैच और अब इस तरीके की गेंदों को रोकना बिल्कुल कमिटमेंट देखने लायक बन रहा है। ओवर समाप्त 6 के बाद 56 3 विकेटों के नुकसान पर 6 गेंदों में 14 रनों की अब दरकार। 14 runs to win. Okay, my Viral first question છે આ ટુર્નામેન્ટ કેટલા ઓવરની છે? 7 મેમ બોલ્યા, અરે વાહ. મેન્સ ની કેટલી ટીમ છે આપણી પાસે? ફિમેલ 3 ટીમ છે અને મેન્સ ની કેટલી ટીમ છે? કેટલી ટીમ છે મેન્સ ની? Give me the right answer. वहां पे किसी को नहीं मिला है. So one more. एक और. ये टीम को मिला ही नहीं था, right? Congratulations everyone. I hope आप ये चॉकलेट्स खा के थोड़ा आपका मूड अच्छा होगा, कुछ मीठा होगा and we'll be back with all the chocolates again. एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए बजा दो यार. You guys are great audience. Thank you so much. Yes, darling. So you finish. इस दरमियान यहाँ पर 30 रन सिक्सर आता हुआ विरल है तो मुमकिन है और उनका अच्छा साथ निभाते हुए यश इस समय अब जवाबदारी मोनिश के कंधों पर। 28 पर विरल एक बार फिर से यहाँ पर बल्ला घुमा, वह खिलाड़ी ने छलांग लगाई लेकिन गेंद उस खिलाड़ी को भेदती हुई विजय एक्सपोर्ट सिक्सर। बैक टू बैक 2 सिक्सर, 2 बड़ा प्रहार, 2 करारे प्रहार। कहीं ना कहीं मोनिश के चेहरे पर अब संकट आता हुआ। 68 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अब केवल 2 रनों की और दरकार। 4 गेंदे 2 रन, 4 balls 2 runs to win। 34 पर पहुंच चुके हैं विरल। तूफानी पारी एक बार फिर से यहाँ पर हवा में, लेकिन जब तक गेंद तक पहुंचते 1 रन पूर्ण कर लिया गया है, यानी कि बराबरी पर बिल्कुल ये मुकाबला आता हुआ। अब केवल 1 रन की आवश्यकता है। 69 3 विकेटों के नुकसान पर विरल 36 पर 35 पर पहुंच चुके हैं और यश अच्छा साथ निभाते हुए 11 पर खेल रहे हैं। यहाँ यश भी उसी अंदाज में चौका बटोरते हुए विजय एक्सपोर्ट चौका, और इस तरीके से इस मुकाबले को ओम अलंकार ने जीत लिया है। क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी की गई, अच्छी गेंदबाजी लेकिन उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी, और ओम अलंकार ने इस मुकाबले को लगभग 7 विकेटों से जीतते हुए एक जबरदस्त बल्लेबाजी विरल द्वारी हुई और कप्तान ने आकर एक कप्तानी पारी खेली और इस तरीके से सारे लीग मुकाबले अब समाप्त होते हुए अब इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा वो गोल्डन ग्लैडिएटर्स विरुद्ध ओम 11 के बीच में ये महिलाओं का मुकाबला रहेगा।